Hare Krishna. Hello friends, how are you all doing? I hope you all are doing well. This is Ritendra. I am preacher of Bhagavad Gita, and today I am going to talk about Bhagavad Gita and Big Bang Theory. This is a hot topic and I am also going to talk about God particle. God particle क्या है उसके बारे में बात करें. But before I start my lecture, I would like to introduce Srimad Bhagavad Gita. This is Srimad Bhagavad Gita, as it is written by A.C. Bhakti Vedanta Srila Mahaprabhupada from ISKCON temple. And I would say Srimad Bhagavad Gita is neither religious book nor spiritual book. It's a pure book of the science and humanity. I am trying to propagate a humanity on the basis of Srimad Bhagavad Gita and trying to morally motivate to those people who are actually frustrated and attempted to commit suicide. Let's talk about the concept of Big Bang Theory and how both are contradictory. Srimad Bhagavad Gita and Big Bang Theory both are contradictory with each other. So let's start. The concept of the origin of present cosmos or universe through the Big Bang exists. एक धमाका हुआ और सृष्टि का निर्माण हुआ. What the hell is this? एक मतलब सपोज जान लो आप, अगर कोई धमाका होता है, कोई ब्लास्ट होता है, वहाँ पे क्रिएशन होता है या डिस्ट्रक्शन होता है, वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव वर्क होता है, डिस्ट्रक्टिव वर्क होता है. वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड. एंड बिग बैंग एग्जिस्ट इन एक्सप्लिसिट डिटेल इन a sacred Srimad Bhagavad Gita of Hinduism. Big Bang theory is also mentioned in Srimad Bhagavad Gita. How both things are available. The sacred Bhagavad Gita exists since more than 3600 years. When the sermon of Gita, pravachan was delivered to mankind by Lord Krishna in the battle of Mahabharata. Scientists world over finally concluding the origination of present cosmos from the Big Bang theory is not new to Hinduism. Big Bang theory is not new to Hinduism. Big Bang theory is also mentioned in Srimad Bhagavad Gita as a teaching contained in Bhagavad Gita where beyond the preview of science, and scientists world over could never understand the detail of Big Bang theory contained in Bhagavad Gita. Scientists would never understand the Big Bang theory contained in Srimad Bhagavad Gita. For understanding anything relating to Bhagavad Gita, one needs to contemplation in matter of spiritual. We just have to associate with a spiritual thing. Na? Without associate with a spiritual thing, we can't understand the theory of Big Bang. Unless we had the ability to travel a path of Gyan Yoga, path of absolute wisdom. Gyan Yoga, Sankhya Yoga to Karma Yoga to Bhakti Yoga, और भक्ति योग टू ज्ञान योग, और ज्ञान योग से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है. एंड लॉर्ड कृष्णा से मेरे विश्व रूप का दर्शन करना ही वास्तविक ज्ञान है अर्जुन. ये सभी विज्ञानों का ज्ञान है, ये सभी विज्ञानों में मतलब उत्तम है. अगर इसकी प्राप्ति कर ली अर्जुन, देन यू डोंट नीड टू गेट एनीथिंग इन योर लाइफ. Then Lord Krishna said, one needs contemplation in the matter spiritual. Unless he had the ability to travel a path of Gyan Yoga, path of the absolute knowledge, one could never understand the gist of Bhagavad Gita. Bhagavad Gita of Hinduism contains everything from the A to Z cosmos about the formation of each and every planet. And Lord Krishna said, I am the cosmos, I am the supreme planet, I am all the planet in the solar system. Lord Krishna said, right from the stage of Big Bang, when God Almighty Brahman in humanism explored self to dissolution of the cosmos termed as a pralay in Hinduism. Destruction, we can say pralay. Sampurna Vidvans, total destruction is the main cause of the total construction. Listen it very carefully. Total destruction is the main cause of total construction. If there is no destruction, then there is no possibility of the construction. There is if someone is not die, then there is no possibility of the getting a new birth or getting into new body. This is said in Srimad Bhagavad Gita. The journey of 8.4 million manifestation by our soul, Atma. The spirit within has been fully detailed in Bhagavad Gita about the journey of soul from the 8.4 million manifestation. मतलब 84 लाख 84 लाख बर्थ लेने के बाद भी
हमें मतलब योनि में से पसार होने के बाद भी हमें इंसान के रूप में अवतरना पड़ता है, हमें इतनी योनि में पास होना पड़ता है. सो मच दैट ह्यूमन बीइंग कैन इजीली reach the stage of enlightenment by indulging in Gyan, wisdom contained in Bhagavad Gita, and by only after passing from the 8.4 million manifestation, only 1% can understand the gist of Bhagavad Gita, the supreme knowledge of Srimad Bhagavad Gita. And in the battle of Mahabharata, Arjun could not understood what Lord Krishna stated in Bhagavad Gita, but Lord Krishna gave him a transcendental eyes and transcendental knowledge. When Lord Krishna gave him a transcendental eyes, Arjun could speculate the supreme universal form of Lord Krishna. Lord Krishna, I am the Vasudev, I am the Krishna, I am Murari, I am the happiness and sadness. I am situated in the heart of each and every living entity. If the lamentation come to you, then only and only conveyed by me. If the happiness come to you, it is only conveyed by me. As a detail in Bhagavad Gita, when dissolution of the old cosmos occurred, volume of entire cosmos reduced to the size half thumb. मतलब Bhagavad Gita said, when dissolution of the old cosmos, dissolution, if there is no dissolution, then there is no resolution, there is no construction. Volume of entire cosmos reduced to the size of half thumb. एक मतलब थम की तरह हाफ हो गया उसका, मतलब वॉल्यूम ऑफ द कॉस्मोस. कॉस्मोस जो मतलब ब्रह्मांड था उसका मतलब रेडियस कम हो गया, हाफ हो गया. दिस मास ऑफ कॉस्मिक एनर्जी द साइज ऑफ द हाफ थम, द कलेक्टिव पावर ऑफ द ऑल सोल आत्माज इन द कॉस्मोस इन देयर प्यूरिफाइड फॉर्म इज दैट व्हाट वी कॉल ब्राह्मण और गॉड अलमाइटी. ब्रह्मांड, ब्रह्मा वी कैन से ब्रह्मा और ब्राह्मण और गॉड अलमाइटी. दिस magnanimous primordial cosmic energy size of the half thumb unable to retain itself for a long in its a prime pure stage again the explode within a big bang. कॉस्मस छोटा हो गया, उसके बाद क्या हुआ, इतना छोटा हो गया कि मतलब उसके बाद वो तो धीरे उसका ब्लास्ट हुआ. जैसे ब्लास्ट हुआ तो क्या हुआ, लॉर्ड कृष्णा सेड ना, if there is no destruction there is no possibility of the construction. तो मतलब वहाँ पे ब्लास्ट हुआ और सभी धीरे करके पूरा निर्माण हुआ, नव निर्माण हुआ. दिस इज सेड इन श्रीमद् भागवत गीता. एज भागवत गीता ऑफ हिंदुइज्म कंटेन एवरीथिंग फ्रॉम A to Z ऑफ लाइफ. हमारी ज़िंदगी के बारे में A to Z लॉर्ड कृष्णा ने कह दिया है. कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे सोना है, कैसे वर्क करना है, कैसे निष्काम कर्म करना है और कैसे मटेरियल मैनिफेस्टेशन दूर रहना है, सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन से कैसे दूर रहना है. वॉट लॉर्ड कृष्णा सेड ऑल थिंग. दैट्स वाई आई एम कीप आउट टेलिंग टू ऑल ऑफ यू, श्रीमद् भागवत गीता इज नॉट रिलीजियस बुक, इट इज़ अ प्योर बुक ऑफ द साइंस एंड ह्यूमैनिटी. हमें मतलब जिंदगी जीना सिखाती है भगवत गीता. कैसे जीना है, कैसे अधर्मियों का नाश करना है, कैसे हमारी आवाज़ उठानी है. मतलब पता है हमारी साइलेंट है ना, कभी सामने वाले को अनुमति दे देती है कि वो मतलब अधर्म के साथ जुड़े, अधर्म करे. कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे चुप रहना, उससे मतलब वो तो ठीक है, चलो कहाँ पे चुप रहना इम्पोर्टेंट है, पर कहाँ पे हमें मतलब चुप्पी तोड़नी है, कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे आवाज़ उठानी है, दैट इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर थिंग इन अवर लाइफ. मतलब कब पता है हमारी चुप्पी होती है, हमारा जो मौन होता है ना, कभी सामने वाले को अनुमति परमिशन दे देती है कि वो अधर्म के साथ जुड़ते रहे, और हमारा जो मौन होता है ना, कभी हमारा स्वभाव बन जाता है, हमारा नेचर बन जाता है. देन लॉर्ड कृष्ण फर्दर सेड, it is in our interest as a human being to travel spiritual path and reach a cosmic end of journey, the stage of enlightenment at the earliest. After the occurrence of Big Bang theory, all the pure soul atmas in cosmos spread all over the cosmos at unimaginable speed. मतलब in all the soul atmas, जो एनर्जी को आत्मा कहा गया है, लॉर्ड कृष्णा भी एनर्जी को आत्मा कहते हैं. Cosmos spread all over the cosmos spread all over the cosmos at the unimaginable speed. मतलब unimaginable, we can't imagine the actual speed of the cosmos or atmas. In the me, the hurtling soul atmas, hurtling soul or atmas gathered impurities similar as a rolling
बॉल गैदर मॉस, मतलब एक सभी आत्मा कॉस्मोस में एक रोलिंग बॉल बन गया, एक मतलब एक बॉल बन गया, रोलिंग बॉल। द क्लींस सेल्फ और ड्रॉस इम्प्योरिटी विद द स्टार्ट कॉस्मिक लाइफ साइकिल ऑफ एवरी सोल आत्मास। उसके साथ मतलब एक रोलिंग हो गया, उसके बाद मतलब जो साइकिल थी वो स्टार्ट हो गई हर एक आत्मा की। इट इज ओनली थ्रू द चेन ऑफ 8.4 मिलियन मैनिफेस्टेशन एवरी सोल आत्मास फाइनली रीच टू द कॉस्मिक एंड ऑफ द लाइफ। Ultimate goal of each and every soul is to reach unto the super soul and at the supreme abode of Lord Krishna और supreme abode of super soul। परमात्मा में सुप्रीम एबोर्ड उनका ले लेना। 8.4 मिलियन मैनिफेस्टेशन व्हेन ह्यूमन बीइंग गेन्ड एनलाइटनमेंट। 84 लाख योनि में पास होने के बाद ह्यूमन बीइंग को एनलाइटनमेंट मिलता है। अगर ह्यूमन है ना, ह्यूमन हमारा मनुष्य रूप में अवतार ही हमें हमारा सभी कर्मों से मुक्त करवाएगा। यही एक अवतार है आपका जो आपको मटेरियल मैनिफेस्टेशन से मुक्त करवाएगा, जो आपको जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त करेगा। अदरवाइज बहुत सारे अवतार होते हैं, बहुत सारे आपने जन्म लिए हैं, पर मनुष्य रूप में जो जन्म लिया है ना, वही आपको सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन, आपको इट विल श्योरली मेक यू फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ द बर्थ एंड डेथ एंड इट इज अल्टीमेट गोल ऑफ ईच एंड एवरी सोल टू मेक हिम और हरसेल्फ फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ द बर्थ एंड डेथ। Out of 8.4 million manifestation on the wall, the later 1.1 manifestation by our soul atmas occurred in the human form। 84 लाख योनि में ऐसा होता है। उसके बाद 1 लाख योनि ऐसी होती है जो मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं, जो मतलब इनकारनेशन होता है, मतलब क्या होता है, रीबर्थ होता है जिसका। वो 1.1 मिलियन मैनिफेस्टेशन बाय आवर सोल आत्मास occurred in the human form। Does it means for a human being to reach the stage of enlightenment? मतलब 1 करोड़ योनि ऐसी, मतलब क्या बोलते हैं, 10 लाख योनि ऐसी होती है, 10 लाख योनि ऐसी होती है कि जो हमारा मनुष्य रूप में अवतार होता है हमें एनलाइटन मिलता है। 10 लाख योनि भगवान ने डिसाइड की है कि हमें 10 लाख योनि मनुष्य रूप में मिलेंगी और आपको इतना अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि अभी आपके पास समय है, आप अपने आत्मा में परिवर्तन ला सकते हो। तब तक आप नहीं इच्छोगे, जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी आपकी आत्मा में परिवर्तन लाने की, संसार में कोई भी ताकत, कोई भी व्यक्ति, कोई स्वयं परमात्मा कृष्णा भी आपकी आत्मा में परिवर्तन लाने के लिए चमत्कार करे तो अभी व्यर्थ है, कृष्णा भी नहीं कर पाएंगे। तब तक आपकी आत्मा खुद ही अपने आप ही परिवर्तन नहीं चाहती। पर एक मोह माया, इल्यूजन, ईगो, एरोगेंस में इतने गिर जाते हैं लोग कि अपनी उनकी आत्मा में परिवर्तन आता ही नहीं, वो लाना ही नहीं चाहते। उसके बाद डज इट मीन्स फॉर द ह्यूमन बीइंग टू रीच द स्टेज ऑफ एनलाइटनमेंट अवर सोल आत्मा नीडेड अ मैक्सिमम 1.1 मिलियन मैनिफेस्टेशन। यस द कॉस्मिक ट्रूथ इज सो। 1.1 मिलियन मैनिफेस्टेशन एज द कॉस्मिक ट्रूथ इज सो। कॉस्मिक एनर्जी वहीं से एक आत्मा है ना, वही कॉस्मिक एनर्जी है। एंड उसके बाद गॉड अलमाइटी, बिग बैंग थियरी, द वर्ल्ड ऑफ सोल आत्मास, all are integrally connected as a Bhagavad Gita of Hinduism। God bless those who truly search of God in the present life। भगवान के आशीर्वाद के बिना आप परमात्मा को सर्च कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा, बहुत सारे साधु बने, स्वामी जी बने हैं, बोल रहे कि ह्यूमन को, मैं ह्यूमन हूँ, मेरी पूजा करो। मैंने देखा हुआ है आश्रम खोल के बैठे हुए, बस पैसा कमा रहे हैं, मटेरियल चीज़ें कमा रहे हैं, उनको लग्जरियस लाइफ चाहिए। ठीक है, आपको जो भी लग्जरियस मिल, जो भी फैसिलिटेशन मिल रहा है, यू जस्ट हैव टू एनलाइटन द पीपल, यू जस्ट हैव टू यूटिलाइज दिस ऑल थिंग, मटेरियल थिंग इन ऑर्डर टू एनलाइटन द पीपल, बट यू आर फेल टू डू सो, क्योंकि आप मोह माया के चक्कर में इतने गिर जाते हैं। मोह क्या है, माया क्या है? माया हमारी इच्छा है। कोई स्त्री को माया नहीं कहेंगे, किसी और व्यक्ति वस्तु को माया नहीं कहेंगे। माया किसको कहेंगे? माया कहेंगे हमारी अंदर की इच्छा है, हमारे डिज़ायर है, हमारे एक्सपेक्टेशन, उसको माया कहेंगे। उसने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया, उसने मुझे गाली दिया, उसने वो किया। क्यों मोह माया के चक्कर में पड़ रहे हो? आपको हर एक परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, बस यू जस्ट हैव टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। इफ यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, then you will surely fall down, you will surely sink down into the material pool, but at the same time you are not able to understand। सामने वाला आपको कितना भी समझा रहा है, but you are not able to understand। Let's talk about another thing। Having realized God in 1993, basic life of realized the God in 1993,
and basic of the life has become like ABCD to me, and gist of Bhagavad Gita is also become like ABCD. So it is said by Stephen Hawking, and I could indulge in the theory of Big Bang much than whatever mentioned in श्रीमद् भागवत गीता. पर मुझे एक बात बताइए आप, अगर दो पार्टिकल एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं, उसमें से ब्लास्ट होता है, सपोज लॉजिक लगाइए, दो पार्टिकल इकट्ठा होते हैं, ब्लास्ट होता है, अगर कहीं पे भी हम ब्लास्ट करवा दे तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव वर्क होगा या डिस्ट्रक्टिव वर्क होगा. जो हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था ना, वहाँ पे ब्लास्ट करवा था, लोगों को मतलब टोटल डिस्ट्रक्शन हुआ था ना, वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव वर्क हुआ ही नहीं. हुआ था क्या? नहीं हुआ था ना. बट एट द सेम टाइम हम वो चीज़ कह सकते हैं, अगर बैटल ऑफ महाभारत में लोगों का सहार नहीं होता, संपूर्ण विध्वंस, लॉर्ड कृष्णा से संपूर्ण विध्वंस नव निर्माण का कारण है. तो एक वो भी पॉसिबिलिटी है एज पर बिग बैंग थियरी एंड श्रीमद् भागवत गीता. लॉर्ड कृष्णा सेड इफ देयर इज नो टोटल डिस्ट्रक्शन, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ द टोटल क्रिएशन, रिक्रिएशन, कंस्ट्रक्शन. अगर हम घर गिरा देंगे और मतलब वही है कि वो टोटल क्रिएशन साफ होगा, क्योंकि साफ होना मतलब टोटल डिस्ट्रक्शन होना मतलब इम्प्योरिटी का नाश हो जाना. अगर इम्प्योरिटी नाश हो गई तभी टोटल कंस्ट्रक्शन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा. दिस इज मेंशन इन श्रीमद् भागवत गीता एज वेल एज दिस इज अ सिमिलरिटी इन बिग बैंग थियरी एंड गॉड पार्टिकल. गॉड पार्टिकल ऐसा पार्टिकल, गॉड पार्टिकल किसको कहा है पता है? हमारी आत्मा को कहा गया है. हमारी आत्मा में जो एनर्जी, उसको कॉस्मिक एनर्जी कहा गया है. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द कॉस्मिक एनर्जी एंड आवर सोल, बट पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, पीपल आर नॉट एबल टू सर्च, पीपल आर नॉट एबल टू डू रिसर्च वर्क. उनको पता है मटेरियल चीज़ों में इतने घिरे रहते कि अपने आप को भी भूल जाते हैं. वास्तव में रिस्पेक्ट होता है ना, वो हमारी आत्मा का रिस्पेक्ट होता है. एक ट्रांसेंड आत्मा से आत्मा का कनेक्शन होता है. सामने वाले हर एक इंसान से गलती होती है. ईच एंड एवरी पर्सन मेक अ मिस्टेक, इट्स अ बैड फैक्ट. अगर जो व्यक्ति मिस्टेक नहीं करेगा ना, एरर नहीं होगा ना उसके अंदर, कोई नोबडी इज टोटली परफेक्ट. कोई भी व्यक्ति संपूर्ण परफेक्ट नहीं है, टोटल परफेक्ट नहीं है. हर एक व्यक्ति मिस्टेक करता है और उसी मिस्टेक से सीखता है. उसका मतलब जो गलतियां कर रहा है उसका प्रायश्चित क्या पता है? प्रायश्चित वो है आपसे माफ़ी मांगे, आपके हाथ जोड़ के उसको सच्चे दिल से उसने माफ़ी मांग ली ना, तो स्वयं कृष्णा, स्वयं वासुदेव, स्वयं परमात्मा आपको माफ़ कर देंगे. तो बिग बैंग थियरी ऑल अबाउट कॉस्मिक एनर्जी. तो भागवत गीता में कहा गया दो पार्टिकल कोलाइड होते हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्शन होता है. मतलब वही मैं बोल रहा हूँ, दो पार्टिकल कोलाइड होते हैं, उसके बाद संपूर्ण विध्वंसी नव निर्माण का कारण है. आई एम कीप आउट टेलिंग टू ऑल ऑफ यू, इट्स अ बैड फैक्ट. वी हैव टू अंडरस्टैंड कि संपूर्ण विध्वंस क्यों नव निर्माण का कारण है. अगर क्यों मतलब वही है कि क्या होता है, टोटल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उसके बाद नया जीव की उत्पत्ति होगी, ना सब कुछ जीवन मतलब अलग अलग वे में अलग अलग काम करेंगे. ऐसे प्लेनेटरी सिस्टम होता है. भगवद गीता में कहा गया, बहुत लोगों के पास मिसपरसेप्शन है अबाउट बिग बैंग थियरी, भगवद गीता. दे आर एक्चुअली गिविंग अ लॉजिक लाइक रीजनिंग देते हैं कि नहीं, अगर धमाका हो गया वहाँ पे टोटल डिस्ट्रक्शन ही होगा. पर आप इनिशियल लेवल पे क्यों सोच रहे हो धमाका होगा, वहाँ पे टोटल डिस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, देयर वाज अ टोटल डिस्ट्रक्शन, बट आफ्टर द डिस्ट्रक्शन, after passing from the fuse way, later on after passing a few years or few days, नए जीव की उत्पत्ति होगी. ज्वालामुखी होता है, उसका लावा इतना मतलब बाहर निकलता है, तब मतलब क्या होता है, हर एक पशुओं को, हर एक व्यक्ति को, जीव जंतु सब कुछ नाश कर देता है. उसके बाद ज्वालामुखी का जो लावा होता है वो धीरे धीरे मतलब को ठंडा होने लगता है, मतलब गर्म होता है, उसके बाद ठंडा होने लगता है. उसके बाद क्या होता है, वहीं पे ज्वालामुखी का जो लैंड बनती है, जो ज़मीन होती है, इतनी फर्टाइल होती है कि वहाँ से जीव की उत्पत्ति होती है. तो हम क्यों भूल जाते हैं, टोटल डिस्ट्रक्शन इज अ मेन कॉज ऑफ टोटल कंस्ट्रक्शन. So thank you so much. I hope you all can understand. If you are having any question, any doubt, then please kindly put a comment and please put a questions. Thank you so much. Hare Krishna. Radhe Radhe.